Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the methods of animal nutrition. So let's move to the whiteboard. So methods of animal nutrition. So dear students, this is very important topic regarding short questions as well as MCQs. लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, कोई भी 2 से 3 मेथड्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. सो इन लार्ज एनिमल्स every cell needs nourishment yet most of the cells cannot move to the source of food. So it means the food must be delivered to all the cells. इस पर्पस के लिए अब डियर स्टूडेंट्स अल्लाह ताला ने जो लार्ज एनिमल्स हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रखा. द डाइजेस्टिव सिस्टम provides the animal with water, electrolytes, and nutrients. And this is accomplished by the digestive system. ये सारे काम digestive system खुद से करता है. The digestive system which ingest food को ingest किया through the mouth cavity or oral cavities, propel the food into a digestive tract. Number 3 is digest the food. Number 4 absorbs water, electrolytes, and nutrients. And finally, removes
or ingest the undigested matter from the body. So these are the 5 important stages or 5 important purposes of the digestive system of the large animals. Ingestion of the food, then propel the food into the digestive tract. Number 2 and number 3, digest the food. Number 4, absorbs the food. And number 5 is removes or ingests the unwanted or undigested material from the body. So dear students, there are various methods in animals by which different animals have different modes of and different methods of their nutrition. Among them, first of all, I am going to enlist, and after that, हम उसको one by one discuss भी करेंगे. So here are the methods which we will discuss in our lectures. Number 1 are the detritivores. These are the animals. Number 2, the herbivores. Number 3, the carnivores. Number 4, omnivores. Number 5, the filter feeders. Number 6, we will discuss the fluid feeders. And number 7, in the last, we will discuss the macrophageous feeders. So dear students, these are various methods which we are going to discuss one by one in our lectures. Dear students, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस कर लेता हूँ डेट्रिटिवोर्स को. डेट्रिटिवोर्स के बाद फिर जो डिटेल्स है उसको शेयर करूँगा आपसे. सो व्हाट आर डेट्रिटिवोर्स? सो डेट्रिटिवोर्स, these are the animals which feed on detritus. तो dear students, आपको कुछ याद आया detritus से? detritus आप पहले पढ़ चुके हैं ये वर्ड. So what is detritus? That is the dead and decaying animals and plant bodies. जो एनिमल्स या प्लांट्स आफ्टर डेथ जो गल सड़ रहे होते हैं, डिके हो रहे होते हैं, उनके ऊपर जो एनिमल्स फीड करते हैं, उन एनिमल्स को कहा जाता है डेट्रिटिवोर्स, और उस मटेरियल को, डेड डिकेइंग मटेरियल को कहते हैं डेट्राइटस. दैट इज कॉल्ड एज डेट्राइटस. क्लियर? द एनिमल्स विच फीड ऑन डेट्राइटस आर कॉल्ड detritivores. Dear students, here we will discuss the example. The most common example of detritivores is
earthworm, that is earthworm. और डियर स्टूडेंट, आप चैप्टर नंबर 10 में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं. earthworm, it is basically a segmented worm. It is a segmented worm. और आपने वहां पर पढ़ा था कि इसको नेचुरल प्लफ भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल प्लफ. प्लफ हम हल को कहते हैं जो किसान चलाते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इसको नेचुरल प्लफ इसलिए कहते हैं क्यों बिकॉज ऑफ इट्स बरोइंग एक्टिविटी. सो द earthworm ingests the fragments of detritus, especially the vegetation on the surface of soil or during the burrowing activity. So that is its example. ये MCQ के लिए example इसका याद रखना अपने earthworm, example of detritive words. So it is just like this segmented worm. Phylum Annelida, आपको याद आ गया होगा, चैप्टर नंबर 10 में आपको पढ़ाया गया. So this is an earthworm. और ये सॉइल को या उसके अंदर डिकेइंग मैटर को इंजेस्ट करता है और छोटी छोटी से बॉल्स की शक्ल में वो बाहर सॉइल के सरफेस पे रख देता है. सो दिस इज द इंजेस्टेड डेट्राइटस. क्लियर? नाउ नंबर 2 आर द हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. डियर स्टूडेंट्स, अगले तीनों को समझने के लिए एक मेन चीज़ है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है. ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत अहम है. आई एम ड्राइंग द अपर एंड द लोअर जॉ ऑफ ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमंस के पास वो कंप्लीट टीथ का सेट है जो कि किसी और एनिमल के पास इससे बेहतरीन प्लान नहीं होता. बिकॉज जो ह्यूमंस हैं दे आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह. तो डियर स्टूडेंट्स, अपर जॉ एंड द लोअर जॉ, उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं. जैसे ये हमारा अपर जॉ और उसके नीचे लोअर जॉ, इसको मैं 4 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं, यहां से रख के 4 हिस्सों में. सो दिस इज अपर राइट क्वाड्रेंट एंड दिस इज अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट. इसी तरह से ये लोअर, ये नीचे वाला हमारा जॉ यानी जिसको मैंडिबल भी कहते हैं, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज लोअर राइट क्वाड्रेंट. इन चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर अगर आप एक क्वाड्रेंट का टीथ प्लान समझ लेंगे तो चारों के अंदर एज इट इज है, बिल्कुल सेम है. ठीक है? और अगले तीनों टॉपिक समझने के लिए और आगे जो हम डाइजेशन पढ़ेंगे ह्यूमंस के अंदर, उसको भी समझने के लिए इस टीथ प्लान को समझना बहुत जरूरी है. दिस इज ह्यूमन teeth set. So dear students, I am going to start from here. एक ही क्वाड्रेंट को ड्रॉ करूंगा मैं. So these are the teeth in the upper right quadrant. Now I am going to label them. ये first 2 जो teeth हैं, these one, इनके पहले मैं नंबरिंग
कर दूं, फिर उसके बाद इनको समझाता हूं डिटेल से। दिस इज टीथ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो एक क्वाड्रेंट के अंदर 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32। तो ह्यूमंस के अंदर टोटल जो सेट है हमारे पास 32 टीथ का, उसका प्लान है। बाकी सारे जो तीनों क्वाड्रेंट्स हैं बिल्कुल इसकी कॉपी होंगे। सो इन द फर्स्ट 2 टीथ they are called as incisors. They are called as incisors. These are flat teeth. ये बिल्कुल हमारे सामने वाले जो दांत होते हैं, बिल्कुल सामने फ्रंट पे यहां पर, they are flat teeth. बिल्कुल फ्लैट होते हैं। और इनका मकसद क्या है, मेडिकल साइंस क्या कहती है? These are the flat teeth. The first two are the flat teeth. They are called as incisors. They are meant for the cutting plants. They are meant for cutting plants most of the time. ये plants को काटने के काम आते हैं। उसके बाद एक ये देख रहे हैं pointed teeth है, this one. This is a somewhat pointed नोकीला दांत है, इन incisors के बिल्कुल साथ यहाँ पर होता है। If you can see in your mirror, so this one is called as canine. The pointed teeth. And these are meant for cutting flesh or meat. तो गोश्त को काटने के लिए अल्लाह ताला ने ये पॉइंटेड टीथ रखा है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उसके पीछे नंबर 4 एंड नंबर 5, these two are called the premolars. These are premolars, और these are broad teeth. ये काफी ब्रॉड होते हैं। And they are meant for grinding. ये ग्राइंड करते हैं द फूड, एनी काइंड ऑफ फूड, चाहे वो प्लांट है चाहे वो फ्लैश है, उसको ग्राइंड करने के लिए। और इसी तरह से लास्ट 3, 6, 7 एंड 8, दे आर कॉल्ड एज मोलर्स। तो मोलर्स से पहले वाले 2 प्री मोलर्स, प्री का मतलब पहले, और मोलर्स दे आर ऑल्सो ब्रॉड टीथ। आमतौर पर हम इनको कहते हैं टीथ ऑफ विजडम, और इनका काम भी होता है, दे आर मेंट फॉर ग्राइंडिंग। ये भी ग्राइंडिंग का काम ही करते हैं, ग्राइंडिंग द फूड। सो दिस इज आवर टीथ प्लान। जो स्टूडेंट्स, ये याद रखना है हमेशा के लिए, ये सबसे बेस्ट प्लान है अल्लाह ताला ने जो क्रिएट किया अब तक के जितने भी क्रिएशन थे उनके अंदर। सो 8, द फर्स्ट 2 incisors, the third one is canine, the 4th and 5th is premolars, and 6, 7, 8 are the molars. Clear dear students? तो इनके साथ आपको, इन नाम के साथ साथ इनकी आपको फंक्शन भी बता दिया। अब इसी तरह से 8 इधर हैं, इसी तरतीब से पहले तो incisor, then canine, then premolars 2, और फिर लास्ट में 3 are the molars, और इसी तरह से नीचे वाले जॉ के अंदर मौजूद हैं। ये आपने याद रखना है। अब आगे जो हमने पढ़ना है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, वो सारा का सारा इसी से रेलेवेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हर्बीवोर्स। तो जरा नाम पे गौर करें, हर्बीवोर्स। वोर का मतलब होता है डियर स्टूडेंट खाना, ठीक है, और टू ईट। और हर्ब आपने पढ़ा है, हर्ब कहते हैं जड़ी बूटियों को, यानी कि प्लांट्स को। So these are the animals which eat plants. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाएं उनको कहा जाता है हर्बीवोर्स या हर्ब्स। हर्ब्स मीन्स द प्लांट्स। इनकी अगर क्लासिफिकेशन में देखा जाए, they include
इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स भी हर्बीवोर्स हैं। देन आर द लास्ट थ्री क्लासेस, द लास्ट थ्री क्लासेस ऑफ द वर्टिब्रेट्स, जो टेट्रापोड्स में आपने पढ़े थे सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर। सो क्लास रेप्टाइला यानी कि रेप्टाइल्स, जो रिंग कर चलने वाले जानवर, वो भी हर्बीवोर्स होते हैं। इसी तरह से बर्ड्स, दे आर ऑल्सो हर्बीवोर्स, एंड द मैमल्स ये भी हर्बीवोर्स होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जहां तक मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में दो अहम हर्बीवोरस मैमल्स हैं। एक उनमें मौजूद हैं रोडेंट्स, वन आर द रोडेंट्स एंड द अदर आर द अंगुलेट्स। अब रोडेंट्स आपने देखा होगा, चूहा देखा आपने या गुलहरी देखा, स्क्वैल्स देखी, इनके ऊपर वाला जो दांत हो यानी इंसाइजर्स जो होते हैं ये एवर ग्रोइंग होते हैं, ये ग्रो करते रहते हैं। इसलिए ऊपर वाले दो और नीचे वाले दो जो इंसाइजर, ये फर्स्ट पेयर जो है ये हमेशा इनका ग्रो करता रहता है। हमारा तो एक एज में आकर रुक जाता है। इनके जो फ्रंट वाले जो टीथ होते हैं ये कटिंग के लिए स्पेशली दे आर मेंट फॉर देम। तो माउस एंड रैट्स एंड स्क्वैल्स and the Kashmiri flying squirrels, all these they belong to the rodents. So they are also, इनके सामने वाले दो दांत इस तरह से बहुत ही लंबे होते हैं और बहुत शार्प होते हैं। जैसे चूहे के दांत आपने देखा ना, कुतर कुतर के वो चीज़ों को फेंक रहे होते हैं। सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। और जहाँ तक बात अंगुलेट्स की है डियर स्टूडेंट्स, अंगुलेट्स दीज आर द hoofed grazing animals। hoofed का मतलब है जैसे एनिमल्स जो अपने टिप्स के जो टोस होते हैं, जैसे जो टोस के जो टिप्स होते हैं वहां उसके ऊपर ग्रो करे, जैसे खुर, जैसे आपने खुर वाले जितने भी जानवर देखे होंगे उनको कहा जाता है hoofed एनिमल्स, लाइक द गोट्स, शीप्स, हॉर्स, कैटल्स, जितने भी कैटल्स हैं। तो जिन जानवरों के जो मैमल्स हैं उनके खुर होते हैं, उनके जो टोस होते हैं, उनकी जो टिप्स होती हैं उनके ऊपर चलते हैं, उनको हूफ्ड कहा जाता है। और ग्रेजिंग, ग्रेज का मतलब चरने वाले। तो एक तो खुर होने चाहिए, दूसरे नंबर वो चरने वाले मैमल्स होने चाहिए। सो दे बिलोंग टू द हर्बीवोर्स एंड दीज आर कॉल्ड एज हूफ्ड ग्रेजिंग मैमल्स। और इनमें भी डियर स्टूडेंट्स याद रखना है, अच्छा यहाँ पर मैं इनका टीथ प्लान आपसे शेयर करने लगा हूँ कि इनका टीथ प्लान किस तरह से। आपने कुर्बानी के ऊपर देखा होगा, या अगर आप गोश्त खरीदने जाते हैं तो कसाई की दुकान के ऊपर, बच्चर की जो शॉप होती है उसके ऊपर इनके अक्सर जो हेड होता है वो लटका हुआ होता है। तो इनका टीथ प्लान डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होता है। मैं सिर्फ एक जॉ ड्रॉ करने लगा हूं, अपर जॉ, इन अंगुलेट्स का। इनके पास इंसाइजर्स तो हैं यहां पर, दीज आर द इंसाइजर्स, लेकिन उसके बाद फिर देयर इज अ लॉन्ग गैप, उसके बाद फिर बहुत लंबा गैप है। और फिर उसके बाद मौजूद हैं इनके पास मोलर्स एंड द प्रीमोलर्स। कभी आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा, यहां पर एक बहुत बड़ा गैप होता है बिटवीन द इंसाइजर्स एंड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। These are incisors and these are the molars and premolars. क्लियर? तो यहां पर ये क्या गैप है, तो इसमें आप मुझे बताएं ऊपर वाला सेट देख के कि इनके अंदर कौन सा दांत मिसिंग है। सो कैन यू कैन इजिली गेस, अगर आपने गौर से सुना है तो इंसाइजर्स के बाद आना चाहिए थे कैनाइन, तो इनके अंदर कैनाइन नहीं मौजूद। सो दे हैव, यहां पर होना चाहिए जो गैप है दैट इज फॉर कैनाइन। सो दे हैव नो कैनाइंस। क्योंकि कैनाइन किस लिए होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैनाइन गोश्त खाने के लिए होते हैं और ये प्लांट खाने वाले जानवर हैं। तो नेचुरल सी बात है, बहुत लॉजिकल सी बात है, इनके अंदर जो गैप है। अब जब बकरा खरीदने जाते हैं कुर्बानी के लिए तो उसमें वो 2 दांत 4 दांत या 6 दांत
लेकिन उसके दरमियान में गैप होगा हमेशा, कभी नोट कीजिएगा इस बात को। वो रीज़न क्या है? बिकॉज कि इनके अंदर जो कैनाइंस मिसिंग होते हैं। कैनाइंस किस लिए थे? दे आर फॉर कटिंग द फ्लैश। तो ये गोश्त नहीं खाते, तो अल्लाह ताला ने इसलिए लॉजिकली इनके अंदर वो वाला सेट नहीं रखा। शीप्स के अंदर, इनके अंदर थोड़ी एक और चीज़ है, इनके जो लोअर जॉ है, दिस इज द लोअर जॉ, इसमें इंसाइजर्स भी हैं और इसी तरह से वो सारा सेट मौजूद है, इंसाइजर्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इनका जो अपर जॉ है, याद रखिएगा, इनके अपर जॉ में इंसाइजर्स नहीं है। आप देख सकेंगे यहां पर देयर आर नो इंसाइजर्स इन द अपर जॉ, नो इंसाइजर्स इन अपर जॉ। तो ये बात अपने याद रखनी। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से जो लार्ज एनिमल्स हैं वो अपनी न्यूट्रिशन के एतबार से किस तरह से डिपेंडेंट होते हैं, और इसमें अपने नेचुरल टीथ प्लान है उसको भी समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और जो एनिमल्स जो हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।